Hello students, in the previous video I had explained you how to multiply a binomial by a binomial, and you can use the same format to multiply a binomial by a polynomial as well. The two methods were the horizontal one and the column method. Now I'm going to teach you the standard identities. There are some standard formulas which you can use to solve the multiplication of particular polynomials. But before that, I want to explain you a question in which you have to find the product and verify it for various values. That is question number 4. To find the product and verify it for the value p equal to minus 2 and q equals to 2. The first question is p minus q multiplied by p plus q. Okay, in these questions, what you are going to do, you are going to first solve this equation. On solving, you will get, that you will multiply p by the second polynomial and then the second term of the first binomial by the complete second binomial. What you will get? P square plus pq minus pq minus q square. This will get cancelled out. Plus pq and minus pq. What you will get on solving? P square minus q square. Now what you have to do, you have to verify it for the value p equal to minus 2 and q equal to 2. For that you will first solve the LHS. By LHS I mean that when you solved this equation p minus q multiplied by p plus q, you got p square minus q square. So what you will do, you will put the value of p minus 2 and q equals to 2 in the left side of the equation first. So what you will get? Minus 2 multiplied by minus 2 plus 2. This will be equal to minus 4 multiplied by 0. What you will get? 0. Now on putting the value in the RHS, what you will get? P square minus q square. So it will get minus 2 multiplied by minus 2. What you will get? 4 minus 4 equal to 0. So LHS equal to RHS, hence verified. Now let's come back to standard identities. See, consider x equal to 1, then x plus 1 multiplied by x plus 3. You are getting this equation on solving. And then you will put the values x equal to 1 in the left hand side of the equation. You will get 2 multiplied by 4, and when you will put on the RHS, you will get 1 plus 4 plus 3, that is 8 on both sides. So every value, when you multiply the polynomials, for every value of x, the LHS will be equal to RHS. Or an equation which is true for all the values of the variables involved is called an identity. मतलब आप जिसमें कोई भी वैल्यू रखें और वो इक्वेशन ट्रू हो जाए, उसे हम कहते हैं एक आइडेंटिटी. जैसे कि हमने प्रोडक्ट कंसिडर करा, हम 4 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. पहली आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यानी कि पहला पॉलिनोमियल भी आपका a प्लस बी है, दूसरा पॉलिनोमियल भी आपका a प्लस बी है. बाइनोमियल है. इफ इन पर्टिकुलर आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट हैज़ 2 टर्म्स इन्वॉल्व. अब दोनों आपके सेम है. आप जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? आप पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, फिर आप प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से. तो what you will get? You will get a square plus ab plus ab plus b square. So in the end you are getting a square plus 2ab plus b square. This is called an identity. You can use it as an identity that whenever you have polynomial in the form of a plus b multiplied by a plus b, you can directly put a square plus 2ab plus b square. For example, there is a polynomial, there is a multiplication given to you that you have to multiply polynomial x plus 2 multiplied by x plus 2. If you compare it by a plus b multiply by a plus b, तो सेम फॉर्मेट आ रहा है. तो यानी कि यहाँ पर इस केस में a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2. अब आप इसी का फॉर्मूला यूज़ करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब a की वैल्यू क्या आती है? x. तो व्हाट यू विल गेट? x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर. On solving you will get x square plus 4x
plus 4. Now this is one identity. Let's come to another one. So you have got the identity when both the polynomial is of the form of a plus b. Now the other identity is when both the polynomial is of the form a minus b. यानी कि आपका पहला पॉलिनोमियल भी a माइनस बी है, आपका दूसरा पॉलिनोमियल भी a माइनस बी है. देन व्हाट यू विल गेट a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. पैटर्न वही फॉलो होगा दैट वेन एवर यू हैव टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स यू विल फर्स्ट कंसिडर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, टेक एवरी सिंगल टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट सेकेंड पॉलिनोमियल. वही रूल आप फॉलो करेंगे बार बार. क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब यहाँ b मल्टीप्लाई बाय ए है, वेदर यू राइट माइनस बी और माइनस ए बी इट्स वन एंड द सेम थिंग. यहाँ प्लस बी स्क्वायर क्यों आया? आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग यू विल मल्टीप्लाई साइन बाय साइन, नंबर बाय नंबर एंड वेरिएबल बाय वेरिएबल. सो आर गेटिंग प्लस बी स्क्वायर. तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? इससे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगेन यू कैन यूज़ दिस एज एन आइडेंटिटी. आप इसे आइडेंटिटी की तरह यूज़ कर सकते हो. जब भी आपके पास इस पैटर्न का मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की. नाउ लेट्स कंसिडर द अनदर आइडेंटिटी. जब आपके पास कोई पैटर्न है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी का. क्या आएगा इसमें? a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. व्हाट यू विल गेट? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर. दिस विल गेट कैंसिल आउट. सो डायरेक्टली यू कैन से a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. नाउ द लास्ट आइडेंटिटी इज x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस पी. जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, ये इसी फॉर्म का कहलाएगा. x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी वाले फॉर्म का, कि जिसमें पहला टर्म तो सेम हो और दूसरा टर्म डिफरेंट हो. क्या आएगा इसे सॉल्व करके? x प्लस ए एक्स प्लस बी को x मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी. व्हाट यू विल गेट? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो अब आप इन द एंड क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर, देखो बी एक्स और ए एक्स में एक्स कॉमन है तो प्लस एक्स कॉमन लिखिए, ब्रैकेट में ए प्लस बी. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. क्या लिखोगे आप? क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. तो आप इसे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो, बट यू विल गेट ए प्लस बी. यू कैन ऑल्सो राइट बी प्लस ए. तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे सॉल्व करोगे इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग. बट एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट के केस में, तो आप हमेशा पहले मेंशन करोगे कि आप किस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हो. अब लेट्स कम टू ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके बताया ये आपको आइडेंटिटीज को. ए प्लस बी स्क्वायर क्या नोट करती है? एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज ए प्लस बी. ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो जब भी हम कोई स्क्वायर लेते हैं उसके एरिया हम क्या लिखते हैं? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड लिखते हैं. साइड इंटू साइड का मतलब क्या हो गया? साइड स्क्वायर. और ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? साइड का की साइड की लेंथ कितनी हो गई? ए प्लस बी. यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी एक साइड है ए प्लस बी. तो हमने क्या किया? वी ड्रॉ स्क्वायर ए बी सी डी. लेट मी जूम इट आउट फॉर यू. वी आर ड्रॉइंग अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड ए प्लस बी, जहाँ पर आपकी ए एक्स की लेंथ है ए और ए पी की लेंथ भी ए है, और आपकी एक्स डी और पी बी की लेंथ क्या है? एक्स डी और पी बी की लेंथ है बी.
अब एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ ए पी आर एक्स, देखो एक तो बन रहा है इसमें स्क्वायर ए पी आर एक्स क्योंकि साइड ए है इसमें, फिर एक आपका स्क्वायर बन रहा है आर एस सी क्यू, और आपका फिर दो रेक्टेंगल बन रहे हैं एक्स आर एस डी और पी आर क्यू बी। ये आपके दो रेक्टेंगल बन रहे हैं और दो स्क्वायर, इन्हीं के एरियाज को आप प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए पी आर एक्स क्या होगा आपका ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर आर क्यू सी एस क्या होगा आपका, अब ये साइड क्या थी बी लेंथ की थी तो क्या होगा बी स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, अब यहाँ पर लेंथ हो गई है ए और ब्रेथ हो गई है बी, तो ये क्या होगा ए इंटू बी यानी कि ए बी, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लास्ट आया एक्स आर एस डी, ये भी क्या होगा एक्स आर एस डी, तो यहाँ पर भी आपकी लेंथ तो हो गई ए और ब्रेथ हो गई बी, तो ये भी क्या आ जाएगा ए बी। अब आप सब एरिया का प्लस करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो हुआ। ऐसे ही अब यहाँ देखो जब आप a माइनस बी की बात करते हो तो यानी कि ये पूरी साइड तो हो गई a, कैसे डिनोट करेंगे कि पूरी साइड की लेंथ है a, इसमें से एक पार्ट है p है जिसकी लेंथ है b, तो as की लेंथ क्या होगी पूरी कंप्लीट साइड a में से b को आप माइनस कर दो, तो यानी कि अब एक स्क्वायर बन रहा है कौन सा पी ए बी एक्स, पी एक्स बी ए बोल दो या पी ए बी एक्स, इट्स वन एंड द सेम थिंग, पी एक्स बी ए। अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है बी सी आर वाई, बी सी आर वाई का मतलब क्या होगा कि मैं पूरा एरिया में से यानी कि पी क्यू आर एस में से क्या माइनस कर दूँ पी एक्स बी ए माइनस करूँ ए बी वाई एस, और फिर एक और एरिया माइनस करना है मुझे रेक्टेंगल ए बी वाई एस हो गया, एक्स क्यू सी बी हो गया, यानी कि दो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का एरिया मुझे माइनस करना होगा इस कंप्लीट स्क्वायर से, क्या फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी आर वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये साइड कितनी है ए माइनस बी, ये भी कितनी है ए माइनस बी, तो इस पूरे के एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा इस एरिया में से ये एरिया हटाना होगा, ये वाला भी और ये भी, तभी मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी निकाल सकती हूँ। अब पी क्यू आर एस का कंप्लीट एरिया क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरी साइड की लेंथ मैंने आपको क्या बताई है कि ये साइड कितनी है ए, ये भी कितनी है कंप्लीट ए, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या होगा ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पी एक्स बी ए पे क्या आओगे तो वो क्या होगा बी स्क्वायर, क्योंकि ये साइड भी इसकी बी आ गई है, लेंथ भी ये भी बी है, ये भी दोनों साइड इक्वल है इसलिए स्क्वायर हुआ तो बी स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ ए बी वाई एस क्या होगा ए माइनस बी, तो इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है इसकी बी, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स क्यू सी बी क्या होगा, इसकी ये वाली साइड है ए माइनस बी और दिस साइड क्यू सी इज इक्वल टू बी, तो ये भी क्या होगा बी इंटू ए माइनस बी, वही यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो यू विल गेट दिस प्लस बी स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट और आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला।